Hello, wonderful attendees. I'm your host, Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. Get ready to dive into today's topic, that is freelance career opportunities in the media. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Dr. Jitendra Singh, Associate Professor and HOD, School of Liberal and Creative Arts, Journalism and Mass Communication, Lovely Professional University. With expertise in new media, television production, reporting, and health communication, he has 12 publications to his credit, and he has been recognized as a subject expert for educational communication in New Delhi. So now I would like to introduce Mr. Yusuf Ansari, senior journalist in New Delhi. With a 30 years career in journalism, Mr. Yusuf has spent the past 7 years as a freelance journalist. His extensive election coverage and interviews with the senior political leaders have made him a trusted voice in political journalism. So now I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Mr. Ashish Kumar Sharma, a former journalist turned academic counselor with 10 years of experience, currently serving as a senior officer and territory head in tie-ups and public relations at Lovely Professional University. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. And now I hand over the thanks to Dr. Jitendra Singh and Mr. Yusuf Ansari, and it would be an absolute delight to listen from them. Over to you both. My screen is visible? Yes. No, sir. Share your screen. Okay. Yes. So, good evening, everyone. My name is Dr. Jitendra, and thank you, Gurvinderji, for introducing me and giving me a wonderful introduction. I hope I'm audible. Yes, sir. You're audible. You can continue. Okay. So, the topic for today's discussion is about freelance career opportunities in media, and I would be very grateful to speak to my, the participants of this webinar, and I would like to enlighten them about the career opportunities and in media, which are actually meant for the freelance purposes. And also, we have an expert with us who is a very senior journalist, and we will also speak to him and also take queries from him, and we will interact with him and know about more such opportunities in media as per his expertise and experience. So, majorly, when we talk about freelance opportunities in media, what comes to our mind are certain questions like why? Why do we need freelance opportunities in media, and what is the scope for it? See, doing freelance has its own advantages. Like it gives you flexibility to work from home or to work from any suitable environment where you like to work from. And you can choose your own kind of projects. You have the suitability and flexibility to not only choose the kind of work you want to do, and also the work hours, and also the place of work, which is again a kind of a freedom which is not applicable or available to every employee. So working with freelance gives you a lot of flexibility, but yes, then you have to follow the deadlines. Then there are diverse opportunities, not just stick to just one kind of thing you're doing every day. You have to do different kind of tasks, whatever it depends upon the kind of opportunities you crack and the kind of things you get to work from. So you can work on different media platforms, not only just working with just one media organization. You can take projects from different media organizations, and there wouldn't be any boss of yours. You would be your own boss. It's only that you have to do your time management, and you have to work within the deadline so that you should not face any problem. So working freelance is lot of opportunities. Now let's move on to what are kind of opportunities which can be looked upon, or which can be have um, in journalism, which are very frequently seen and available also for the beginners, especially it starts from writing. Most of the people in media starts with writing because this is the ABC of journalism. So if you have a flair for writing and you can contribute good articles, you can definitely send those articles or piece of writing to newspapers, magazines,
And there are different online platforms. There are blogs. You can write different kind of blogs on travel, tourism, whatever topic you feel or whatever subjects you are expert in. You can definitely send your articles. It may be that you are interested in sports and you have good knowledge of sports. Recently, we had uh, T20 World Cup match, and we could see the fever of cricket in India. So if you have certain, something to write on that, you could write your opinions, or you could write a good piece of information on that based on the observations of that cricket match, or any. It can be any subject, like it can be from food to tourism to spirituality. It can be anything, and it can be also published in the form of blogs also. So you are get very good paid for that if your article is selected by those media platforms. So you can definitely start from writing if you have a very good flair for writing and good command over writing skills, maybe in any language. It can be in your regional language also, Hindi also, English also, and in other language, foreign language also, if you prefer to. And then, if you have a flair for citizen journalism, or if you have a flair for investigative reporting, which is a kind of a very specialized or niche kind of a job, for that you need to learn this craft. But that can also be done. But for that you have to conduct in-depth interviews, and you have to create reports on significant issues. Feature writing is also a similar kind of thing which can be done in freelance journalism. So mostly people start with writing as a freelancer, and then there are n number of opportunities. But you must be asking one question: that what are the skills required for a freelance writer or a freelance journalist? In what I feel is one must have skills in research, but prior to that you should have nose for news. You should understand what uh, information can become a good news story, or whatever information is important and can become a good news story in future. So you should have a nose for news, so that you could assume about news stories, and also you should know how to write those news stories. And researcher skills are very important, because research is a part of everyday's life in for a journalist, because every day we do a lot of research before we pen down, before we write scripts. We need to do a lot of research, because that helps in enriching the content. So you should know how to do a better research, which is not time consuming, which doesn't take a lot of time, because when you are doing research on Google, it takes a lot of time, because it gives you a lot of rubbish information which is not of use sometimes. So you should know what are the exact skills when you are doing research on the internet, and otherwise also. And then you should also ability to meet deadlines. As I told you in the beginning only, that you should understand what your deadlines are. You should be ready with that. And networking, of course, because uh, networking helps you in getting you opportunities also, and to generate leads also. So networking is again a very important thing which you should have, or you should develop rather. Then creating content for various media platforms is also one of the opportunities. Like I said, blogging. You can definitely start your own blog, or contribute to others' blog by writing articles or by writing posts for them. Or you can definitely have your own blog where you keep writing on frequent basis. And then uh, you can also, let me just, okay. Okay. So copywriting is also right for you can do copywriting for different platforms like advertisements, websites, marketing materials, okay. And then blogs are all obviously there. So there are different ad agencies which invite people for writing content on freelance basis, for writing content for their advertisements, short films, and then as a ghostwriter also you can write books for some other writers. You can write articles for them, or you can write speeches also. And then what the skills required are, obviously creativity. It has to be very creative. Okay. And then nowadays, what we expect from everyone is to have uh, certain knowledge of digital platforms like SEO. That will be added advantage, because when you are writing, you should know that digital skills are also required, and how to save that article, what keywords has to be planned, what hashtags have to be planned, because without using those hashtags and keywords, you cannot make your content visible on the internet. So you should know SEO also. And then strong writing and editing capabilities are the basic requirements
through which you can definitely start career in freelance journalism or writing. If you have a flair for photography, you know photography and you are good at videography also, you can crack so many deals from different clients for photography. You can, capture events, you can capture not exactly weddings, but there are so many academic and corporate. I would not suggest weddings, but I could suggest corporate events. There are academic events also where you can do photography and videography if you have a flair for that. And then so many people do that, and then creating profiles of some other people or doing short videos, promotional videos, or creating firms for certain clients. You can do a lot of freelance in this area. So if you have technical skills, then technical skills with camera and editing software, obviously you should know how to do photo editing and video editing through softwares like Photoshop or Adobe Premiere or Final Cut Pro or you know Quark Express or different other various softwares which are used for photo and video editing. And you should have a creative eye for capturing compelling images. Not only just picking images is photography, but you should understand what is the best definitive angle through which you can create a very good photograph and ability to work in various environments. Further, there are certain jobs in editing also and proofreading. There are certain publication houses which invite people for proofreading, and though proofreading is an obsolete word these days because it's been done mostly by the softwares also, and now AI also doing the same thing. So there is no further need for proofreaders, but still we require some people who could do proofreading in print media. So there are people who are frequently required for publication houses and certain organizations who print articles, print books, magazines. Uh, so they require people for proofreading of their content and also editing. So editing can be video editing also, but I was talking about copy editing earlier. So you can do video editing also. If you have skills in video editing, you can definitely get uh, videos from your client and you can merge them and come out with a new video by editing those video clips. You will take rough footage from your client definitely as a project, and you will give them a final product finished in the form of film or documentary or a short video or a reel, whatever they want. So that can also be done. So this is also one important freelance opportunity in media, which so many people, so many students are doing after doing the result courses. Graphic designing is also one part where if you have some knowledge of graphic designing softwares like uh, Adobe के जितने packages हैं, ठीक है, अगर आपको फोटोशॉप आना चाहिए, क्वार्टेक्स आना चाहिए, उसके अलावा देर आर अदर सॉफ्टवेयर लाइक पेज मेकर, Adobe InDesign. If you know those softwares, you can definitely create content for social media. Graphics for social media. Like आप देखते हो कि किसी भी छोटे YouTube वीडियो का आपको उसका thumbnail बनाना था. That is also designed through a particular software. Okay, so you should know if you know graphic designing, you can definitely get a lot of freelance work in graphic designing. There are so many marketing campaigns being run by people on websites and digital platforms where they need graphic designers. So if you have interest in graphic designing and you know some software, so you can definitely crack these kind of jobs. And then one more important thing is social media management. And these days, believe you me, you get end number of opportunities in social media management. Every person, be it a celebrity or be it a common man, everybody wants to you know shine on social media because it's a free platform and it gives you a lot of free promotion. So everybody wants to use the social media platform. And everyone, even I have seen spiritual leaders have their own social media platforms to attract people or to uh, propagate their ideologies on social media accounts. So not only the religious leaders, the political leaders, film stars, you know, people who are a little, popular also, less popular also want to become popular through social media. So they need definitely people who could manage their social media accounts, knowing that what and when to post so that their posts are visible on the internet and they also get publicity through those uh, posts.
Also, talking about the skills, you should have strong understanding of social media, how social media platform works. Like LinkedIn is a more professional platform. So what kind of post if you are creating, if you are creating a certain kind of a post, it cannot be posted at everywhere. So for Facebook, you need to create a distinct post, and for LinkedIn, you create a more professional post. For Twitter, you need to write something. For Instagram, you need to create a reel. So you should have a thorough understanding of all the distinct social media platforms which are more popular among the people, where the people actually are. And creativity, of course, this is the business of creativity. You should be creative at every moment, because if you're not creative, you can't create a creative and engaging content. So you should be, you know, filled with creative ideas every time. And analytical skills for performance tracking, because you know not only by creating campaigns on social media works, you have to also understand how to analyze those social media posts, so that you can track your performance with how your posts are performing and how your channel is performing, so that it will help you to grow your channel and your client's channel in future. Then for broadcasting stations, there are so many platforms which require people for giving their voice as a voice artist, as a you know narrator, or as a video artist, where they require their voices for commercials, audiobooks, video games, and different kind of media projects, like as a voiceover artist or as a narrator for a documentary film or a short film. And even you can create your own podcast on Spotify, Anchor.com or Ghana.com or even Google.com. There are so many platforms where you can create your own kind of podcast, which is as easy as possible. And even you can create your audiobooks also, which are most popular these days, not in India, but in the rest part of the world, people are actually listening to podcasts, which is very trending. So you can contribute to radio shows also. You can create your own radio show if you have a talent of stand-up comedy, or you could create any kind of mimicry, or you can create any kind of engaging content with actually people will like. You can definitely produce it for radio. And then for that you have strong vocal skills. You should have the ability to engage and entertain audience, technical skills for recording and editing. PR, again, as I told you, in social media, PR communication is also need of the art, and there are so many organizations which hire people for doing consultancy as a PR, to manage their write-ups for press releases, to distribute them, also building relations with the media, also developing strategies for communication. These are all very prominent and very growing opportunities in media, which anyone can offer you. There are so many NGOs also. There are so many organizations which offer these kind of opportunities in freelance basis. And then if you have a good knowledge of any language, which is your native language, or which you have learned also. So if you could translate him from any language to any language, you get a lot of translation jobs on the internet. Then there are interpretation jobs also available on the internet. And then for that you should have proficiency in language. Teaching and workshop, not that much required. So for this, what is important is build a strong portfolio, showcase your work to attract clients, networking, connect with industry professionals. And for this, I think I would suggest all of you to please be on LinkedIn, make a very professional looking account, and put your all portfolio or everything which you do on LinkedIn, so that you could definitely get a good connection. Use social media and a personal website. If you have, that's very fine. Keep up with industry trends. Obviously, you should have to learn, you should know what are the trends in media, and then establish contracts with clients. So this is the end of my presentation, and now I would welcome our guest for the day, यूसुफ अंसारी साहब. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. एंड आप तो सब जानते हैं, मैं तो ये बहुत सारी बातें जैसे मैंने उस सकता ना भी बताई हूँ, और बहुत सारी बातें मैंने बच्चों के लिए बताई हैं. और मैं इस पर आपसे ज्ञान चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि इस पर आप एडिशन करें,
और आप अपने हिसाब से बताएं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए बच्चों को। पहले तो किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज फ्रीलांस में आजकल आप देखते हैं, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप ऑलरेडी काफी सारा काम कई सालों से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो जर्नलिज्म की फील्ड में लोग आते हैं उनको किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है जर्नलिज्म में, जो कि फ्रीलांस में वो कर सकते देखिए, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत डिटेल में बताया कि किस फील्ड में एज ए फ्रीलांसर कितना काम किया जा सकता है, चाहे वो प्रिंट जर्नलिज्म हो, चाहे वो टीवी जर्नलिज्म हो, या ब्रॉडकास्ट हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। तो अब मीडिया के तीनों फॉर्मेट इस वक्त चल रहे हैं, और हर फील्ड में, हर तरह के फॉर्मेट में फ्रीलांसर की गुंजाइश है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 8-10 साल में, या और थोड़ा सा जैसे डिजिटाइजेशन हुआ है, उसके बाद से फ्रीलांसिंग वर्क में थोड़ा सा कहीं कमी भी आई है और उसके अंदर बढ़ोतरी भी। जो लोग ऐसे हैं कि खासकर अगर हम कोरोना पीरियड की बात को देखें, उसके बाद एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमारे देश में डेवलप हुआ है। पहले वो मजबूरी में था, अब जरूरी हो गया है, और उसे लोग काफी लोग एंजॉय करते हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हुई थी, जिसमें आपने भी अपने प्रेजेंटेशन में शुरुआत किया कि वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग वर्क में एक फ्लेक्सिबिलिटी है। टाइम आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, प्रोजेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें सबसे जरूरी चीज ये है, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम प्रिंट जर्नलिज्म की बात करते हैं, चाहे हम अखबार के लिए लिखें, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लिखें, या टीवी पर कोई छोड़ें। सबसे पहले होता है कि किसी एक टॉपिक पर या किसी एक सब्जेक्ट में आपको अगर एक्सपर्टाइजेशन हासिल हो जाती है, तो वो आपकी यूएसपी हो जाती है। अगर आप आपने देखा होगा कि बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत से लेखक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखते हैं, और बड़े अखबार, जो ब्रांडेड अखबार हैं, तो वो ये पसंद करते हैं कि ऐसे ही लोगों से लिखवाया जाए जिनके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखने का एक लंबा एक्सपीरियंस, 10 साल से एक ही सब्जेक्ट पे वो लिख रहे हैं। तो उनकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, और उनकी बात में एक तरह से वेट होता है। उनकी बात अपने रीडर्स को जो अपील करती है, लगातार उस पर होकर है। तो वो एक तो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर ये अपनाना चाहते हैं कि भाई हमें फ्रीलांसिंग में जाना है, तो उन्हें अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक तय करना होगा कि मुझे इसी फील्ड पे आगे बढ़ना है। तो आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आप लिख सकते हैं, पॉलिटिकल आर्टिकल लिख सकते हैं, या किसी का इंटरेस्ट, किसी का अगर इंटरेस्ट इंफोटेनमेंट में है, एंटरटेनमेंट में है, फिर फिल्म इंडस्ट्री में है, तो फिल्म इंडस्ट्री पे आप देखते हैं। तो उसी पे वो जितना ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे देश में इतनी आबादी है, उसे अब रीडरशिप कह सकते हैं, अखबार की, टीवी की व्यूवरशिप कह सकते हैं, रेडियो के लिसनर कह सकते हैं। वो इतनी बड़ी संख्या में है कि आप कोई भी टॉपिक लेकर के आएंगे, उसको पसंद करने वाले एक बड़ा तबका मिल जाएगा, उससे उसकी व्यूवरशिप, रीडरशिप, उसके लिसनर्स उसी तादाद में मिलेंगे। वो आपको उसको ब्रांडिंग में उससे मदद मिलती है, अपनी ब्रांडिंग हो जाती है। दूसरा, आगे चल के उसमें रिवेन्यू जनरेशन में भी काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज, अगर आपको जानना है कि हमें पॉलिटिक्स पर ही कोई चीज पढ़नी है या देखनी है, तो आप फिर उन्हीं चीजों को देखेंगे कि जहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में आपको अच्छी बात मिलेगी, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक लेखन मिलेगा, और ऑथेंटिक डेटास मिलेंगे, तो चीजें। सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड रिसर्च आपके पास होनी चाहिए। तो रिसर्च ज्यादा पढ़ने से रिसर्च की आती है, और उससे ऑथेंटिक डेटा अगर आपके पास हो, तो वो ऑथेंटिक डेटा, अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उस आर्टिकल्स की वैल्यू को बढ़ाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है। और अगर आप टीवी पर बोलते हैं एज एन एक्सपर्ट, तो उसमें भी आपकी बात में वजन आता है। तो आप जो भी कहना चाहते हैं, उसे डेटा के सहारे कहें, तो उससे आपकी बात में वजन आएगा, उसकी वैल्यू ज्यादा सुन जाएगी। डेटा में भी फिर एक और बात आती है कि ऐसा डेटा आप दें अपने रीडर्स को, अपने लिसनर्स को, या अपने ऑडियंस को, जो भी आपकी ऑडियंस है, तो वेरीफाई एवरीथिंग, जिसे वेरीफाई किया जा सके, तो उससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे, जब मैं जर्नलिज्म में आ रहा था करीब करीब 30 साल पहले, तो हमारे जो गुरु थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्यूरेसी, और उसकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। तो जितना एक्यूरेट, मिसाल के तौर पे अगर हम कहीं कोई कोई हम न्यूज लिख रहे हैं, और जैसे भी इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शन के बाद बहुत सारे आर्टिकल लिखे जाते हैं, बात की जाती है।
तो उसमें हम कई बार इस तरह की बात इस्तेमाल करते थे, वो लाखों वोटों से जीत गए। बताया ये कहने के साथ किसी ने जो लाखों वोट जीत लिया, अगर हम एग्जैक्ट वोट बता दें, वेरीफाई हो जाता है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, अगर हम बता दें सर इस आदमी को इतने वोट मिले, इतने प्रतिशत हुआ, उसके हारने वाले को इतने वोट मिले, ये इतने प्रतिशत था, जीत का मार्जिन इतना था। तो जितना ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी हम अपने ऑडियंस को देंगे, अपने रीडर को देंगे, उससे अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और उससे आपके ऑडियंस का दायरा भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो ऑथेंटिक चीजों को पसंद करते हैं। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है। और तीनों चीजों में वो चीजें हैं, चाहे वो डिजिटल के लिए हम लिखें या अखबार के लिए लिखें। एक चीज और, एक जमाना था जब हम लोगों ने शुरू किया था लिखना 25 साल पहले, तो तब लंबे लंबे आर्टिकल पढ़े जाते थे, 2000 वर्ड के आर्टिकल, 2500 वर्ड का। अब वो जमाना नहीं रहा। अब बेहतर है कि जैसे डिजिटल फॉर्मेट में मेरे ख्याल में 1000 to 1500 वर्ड्स का एक आर्टिकल, एक अच्छा आर्टिकल माना जाता है, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को समेट कर अपनी बात कह सकते हैं और इम्प्रेसिव तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि कितने वर्ड्स आपको देने हैं। डिजिटल में क्योंकि हम आजकल अगर हम कोई भी बात, हम कोई भी चीज लिखते हैं, तो अखबार पढ़ने का वक्त तो सुबह सुबह का होता है, बाकी सारा दिन आदमी मोबाइल पे सर्च करता है। तो मोबाइल पे लोग 1000 वर्ड भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर छोटी कोई बात आप लिख रहे हैं, तो 750-800 वर्ड्स में अपनी बात कह दी। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई बात ऐसी है कि जो ज्यादा वर्ड्स मांग रही है, 1500 वर्ड मांग रही है, उससे ज्यादा मांग रही है, तो बेटर होगा कि उस बात को आप, उस टॉपिक को आप दो हिस्सों में डिवाइड करें और एक हिस्से को करीब 700-800 वर्ड्स में खत्म करें, तो दूसरे हिस्से को दूसरे टॉपिक पे। तो ये बहुत जरूरी है, बाइफरकेशन टॉपिक का बहुत जरूरी है। नहीं, जितना ज्यादा फोकस अप्रोच रखेंगे उतनी ज्यादा रीडर की समझ में बात आएगी। और जो एल्गोरिथम है, यूट्यूब का है या गूगल का है, उसमें भी वही माना जाता है कि साहब अगर अ, जो डेटा हम देखते हैं गूगल एनालिटिक्स में, उसमें वो दिखाता है कि अभी कौन सा आर्टिकल, अगर किसी वेबसाइट पे आर्टिकल को छपा है, उस आर्टिकल्स को कितने लोगों ने पढ़ा और कितना टाइम स्पेंड आर्टिकल पे किया। इसलिए आपने देखा होगा कि जब वेबसाइट पर कोई आर्टिकल खोल के देखते हो, तो ऊपर उसमें लिखा होता है कि ये 5 मिनट रीडिंग का है, 20 मिनट रीडिंग का है, क्योंकि आदमी 5 से 7 मिनट से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। तो 5 से 7 मिनट में हम कितने वर्ड लिख सकते हैं, उसका भी एक आइडिया होना चाहिए। जितने भी मास कम्युनिकेशन से डिपार्टमेंट से हम भी हैं, हमें अपने पढ़ाई के दौरान हमने सीखा था कि नॉर्मल स्पीड में आदमी 1 सेकंड में 3 वर्ड बोलता है। तो हम लगा लें कि भाई एक, अगर 5 मिनट की हम बात कर रहे हैं, यानी 1 मिनट की अगर हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होगी। तो 60 सेकेंड्स में 180 वर्ड, यानी नियर अबाउट 200 वर्ड अगर हम लिखते हैं, तो 1 मिनट में पढ़ जाएगा। 5 मिनट में अगर हम आर्टिकल लिखना है, तो 1000 वर्ड के आसपास आर्टिकल, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये तो बात हो गई अपना आपके लिखने के बारे में। तो चाहे आप अखबार के लिए लिखें, चाहे वेबसाइट के लिए लिखें, या उसको हम वॉइस ओवर करें। दूसरी चीज, अगर हम कहीं फ्रीलांस हम कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो हम बनाते हैं, वो भी फ्रीलांस वर्क में आता है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि टॉपिक हमारा फोकस होना चाहिए और उसकी एक मौजूदा दौर से एक रिलेवेंस होनी चाहिए कि हम ये बात क्यों आज बता रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई पुरानी बात निकाल के हम दे दें, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो फिर उस, जो रिलेवेंट बात चल रही है, जो टॉपिक, करंट इश्यूज चल रहे हैं, उन पर ही बात करें और उसके अलग अलग पहलू की बात करें। कोई अगर किसी ने किसी एक पहलू की बात बताई, तो आप उसका दूसरा पहलू ला सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई आप डेटा पेश कर सकते हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा इतनी बार हो, जैसे अभी हम कह सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर पर एक कंट्रोवर्सी हुई, तो उस कंट्रोवर्सी से हम बता सकते हैं कि भाई इससे पहले 2 बार लोग कौन कौन स्पीकर बने, वो एक अलग आर्टिकल का टॉपिक हो सकता है। या स्पीकर के लिए वोटिंग कब कब हुई, उस पर भी एक अलग आर्टिकल बना सकते हैं। या प्रोटेम स्पीकर को लेकर जैसे कंट्रोवर्सी होती है कि साहब वो सबसे ज्यादा बात जीतेगी, तो उसे लिख लेकर के लगा, तो इससे हमें ये देखा मीडिया में अलग अलग आर्टिकल आते हैं। तो उसी से हमें आइडिया मिलता है कि एक आदमी ने ये बात कही है, तो हम अपने रीडर को इससे रिलेटेड कोई दूसरी बात थोड़ा दूसरा दुकानदार चलता है। तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात ये जो हाल ही में देखने में आया है कि राइटिंग अगर आप करते हैं, चाहे वो अखबार के लिए लिखें या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लिखें, उसको अपने अपना एक स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करें। आजकल जो नया ट्रेंड है, वो स्टोरी टेलिंग का ट्रेंड है। किसी एग्जाम्पल से कोई चीज शुरू करें, पहले कोई एग्जाम्पल हम लें, उस एग्जाम्पल को पहले पैराग्राफ में बता दें,
और फिर उसके बाद अपने जिसको हम कहना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन हमें उठाना है, किसी का सवाल देना है, या उस पर जनरलाइज करना है, उससे रिलेटेड डेटा पेश कर, तो उस तरह से हम आगे बढ़ के उसको फिर कंक्लूड करें, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा तरीका है। और अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। तीसरी बात है कि अगर हम बात करते हैं, चाहे हम रेडियो पर बोलते हो या यूट्यूब पर बोलते हो या टीवी पर बोलते हो या कहीं बोलते हो, तो हमारी आवाज में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, किस वर्ड पे कितना एक्सरसाइज करना है, और प्रोनाउंसिएशन हमारा वो क्लियर होना चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस हम बोले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बोले। अगर हम सेंटेंस हमारा बड़ा हो रहा है, बोलने में भी खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम छोटे सेंटेंस इस्तेमाल करें, कोई बात कॉम्प्लेक्स कहने के बजाय सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करें। एक बात में अगर हम कॉम्प्लेक्स के बजाय एक बात को हम तोड़ तोड़ के तीन चार सेंटेंस में इस्तेमाल करें, तो उसका एक रीडर के लिए आसानी होती है उसे समझने में। इंग्लिश में तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस चलते हैं, लेकिन हिंदी में इस बात का हमें ख्याल ख्याल करना चाहिए कि जितनी हमारी भाषा जितनी आसान होगी, जितनी सिंपल भाषा होगी, आसान शब्द इस्तेमाल करें, आम फहम शब्द, तो वो लोगों को ज्यादा कैची लगते हैं, ज्यादा अपील करते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को शेर व शायरी या कविता पसंद होती है, अगर तो उसकी भी गुंजाइश है कोई बात कहने के लिए, उसका भी इस्तेमाल अगर आपको जानकारी है और आपको अच्छी शेर व शायरी याद है, अच्छी कविता याद है, तो वो भी अपने लेखन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी अलग महत्व, उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बहुत सारे सांसद इस कला का इस्तेमाल करते हैं शेर व शायरी में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो अक्षर शेर को लाया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी शेर का जवाब शेर से देते थे। सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन रही, वो बड़ी अच्छी अच्छी बात शेर व अटल शायरी, कवि भी थे। तो वो, अटल जी जी कविताएं भी लिखते थे, बोलते थे वो तो जी। जी 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 जी। तो बाद में ये चीजें क्या होती कि ये रिलेट करती, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो आम फहम चीजें हैं वो लोगों के जहन में रहती है। दुष्यंत की कविताएं हैं, तो हो गई है तीर पर्वत से फिसलनी चाहिए, या किसी शेर में पढ़ ली, तो वो स्पीच लोगों की के जहन में एक तरह से कह सकते हैं वो प्रिंट हो जाती है, उसे लोग याद रखते हैं। तो उन चीजों में अपनी बात को हम ज्यादा असरदार तरीके से कैसे कर सकते हैं, किस किस बात पर एक्सरसाइज करना है, इसका उससे हमें अंदाजा हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्रीलांसिंग क्या आसान है? मैं कहूंगा कि फ्रीलांसिंग भी आसान नहीं है, और इसके सामने भी चैलेंजेस हैं, इसका भी स्कोप कम हुआ है। स्कोप इसलिए भी कम हुआ है कि अ, ज्यादातर चैनल्स में अब कन्वर्जेंस शुरू हो चुका है मीडिया हाउसेस में। तो पहले ये होता था कि भाई एक रिपोर्टर जो हिंदी का है वो हिंदी के लिए रिपोर्ट कर रहा है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि साहब अगर उसके ग्रुप में हिंदी चैनल भी है, इंग्लिश चैनल भी है, तो एक ही रिपोर्टर इंग्लिश के लिए भी काम करता है, हिंदी के लिए भी काम करता है। वो जो स्टोरी टीवी के लिए भेज रहा है उसकी प्रिंट की भी उसके वेबसाइट पे छप रही है, और अगर उनका पब्लिकेशन भी है तो वही स्टोरी अगले दिन उनके अखबार में भी आ रही है। तो काम उतना ज्यादा हो गया, तो जो बाहर से लिखवाने वाली बात थी वो कम हो गई है। तो उसे हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हम कोई अपने अंदर ऐसी टैलेंट को डेवलप करें कि वो हमारे अलावा कोई दूसरी यूनिकनेस हमारे अंदर हो जाए, और जो चीज हम दे रहे हैं वो उसमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वो डिलीवर कर सकते हैं। तो उसमें पहचान अपनी बनाना और अपनी पकड़ बनाना करते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है। और दूसरी बात ये है कि पहले लेखन का रिवेन्यू जनरेशन, पहले पैसा अच्छा मिलता था, इधर पैसा कम हो गया है। आप लिखे 1000 1200 वर्ड्स का पैसा तो पहले 4 5 हजार रुपए जिस आर्टिकल के मिलते थे, अब उस आर्टिकल के 1 1 5 2 हजार रुपए मिलते हैं। और तो मतलब ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन उसमें इन्हीं चैलेंजेस के बीच फ्रीलांसर्स को काम करना होता है। इसलिए देखना होता है कि भाई हम कहाँ तक कंप्रोमाइज, कई बार कंप्रोमाइज करने की नौबत भी आती है अपनी। तो जैसे और फील्ड में चैलेंज है, तो इस फील्ड में भी चैलेंज है ओवरऑल। नहीं, लेकिन ये सब आपको बीच में माफ कीजिएगा, इंटरप्ट करूंगा। लेकिन कहीं ऐसा भी तो है कि जैसे हम कहें कि ठीक है कि पैसे अगर कम मिलते हैं, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी तो कहीं ना कहीं बढ़ी है। जी जी अवसर जी कहीं ना कहीं हमें बढ़े हैं ना। जी। तो अपॉर्चुनिटीज, उसी मैं कह रहा हूँ कि उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल या एक प्रोग्राम के पहले ज्यादा पैसे मिलते थे और उसके बाद वो कम पैसे मिलने लगते हैं,
तो ऑटोमेटिकली जो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। मेरे आप अपना मानना है कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं आना चाहिए, और उसे उभरने के लिए हमें अपनी कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और ऐसी चीज हमें क्रिएट करनी चाहिए कि जिसे जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो नहीं ला पा रहे हैं। जितनी उसके अंदर नवीनता होगी, न्यूनेस होगी, और जितना हम उसे इम्प्रेसिव तरीके से देंगे, तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से फिर वो पेमेंट भी अच्छा होता है। तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक कोई पिंक पिक्चर पेश कर देते हैं, बाद में लोगों के सामने लगता है कि जैसे किसी शायर का शेर है कि साहब, हमसे पूछो कितना लहू मांगती है गजल, लोग समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। तो वही बात न्यूज में भी आती है। तो इसमें तो ये इस तरह का जो चैलेंज है ना, हमेशा नया देने का जो चैलेंज है, ये इसको अगर क्रिएटिविटी। हमने ओवरकम कर लिया, तो ये एक अच्छा करियर के रूप में आते हैं। और गुंजाइश वाकई बहुत ज्यादा हो गई कि आप एक जैसा कंटेंट बना के वो कई प्लेटफॉर्म पे उसे सेल कर सकते हैं, तो उसकी नुकसान की भरपाई हो जाती है। तो यहाँ मुझे यूसुफ, लगता है आपको दोनों का ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और अब वो थोड़ा फ्री जोन में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्रीलांसिंग एक अच्छा होता है, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज। चलिए, थैंक यू सो मच यूसुफ सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। और जैसा कि आपने बताया कि हमें अपनी अपनी प्रतिभा को और निखारने की जरूरत है, हमें और परफेक्ट होने की जरूरत है। अगर हम जो भी कंटेंट बनाते हैं अगर वो अच्छा हुआ तो डेफिनेटली उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो आपकी जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बीच में भी रोका, माफ कीजिएगा, आपको रोका हूँ बीच में लेकिन अभी क्योंकि हमें बच्चों के सवाल भी लेने हैं और टाइम की भी हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है। और बीच में हमारे आशीष जी, हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज आजकल हमारे साथ एडमिशन में है, तो उनको भी थोड़ा मौका देना है हमें बोलने के लिए। तो मैं इनवाइट करूंगा आशीष जी को, तो वो भी एक हमारे सीनियर हैं, तो आशीष जी को भी सुनेंगे हम लोग, तो वो थैंक यू इसी सो के मच। बारे में बताएं। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच यूसुफ अंसारी जी। जितेंद्र जी, ऐसा है कि अच्छी बातें सुन रहे हो तो 2 मिनट हम कम भी बोल लेंगे, कोई बात। आपने बहुत अच्छा बताया। जितेंद्र जी ने बताया कि आज की डेट में जो है फ्रीलांसिंग का युग चलता ही जा रहा है और सदियों से चलता आ रहा है। मतलब इट हैज बीन डेकेड्स नाउ कि फ्रीलांसर्स आर मूविंग इन देयर ओन पैशन। तो आपने तो ट्रिक्स भी बता दी कि किस तरह से फ्रीलांसिंग की जाती है ना। हाँ, तो दिस इज आप लोग वेरी पूछें। इम्पोर्टेंट। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, सर्टनली उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपके पिछले जो आपके 15-20 मिनट में आपके जो वाक्य निकले हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने। तो मेरी तरफ से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, वेर एवर यू आर विलिंग टू स्टडी, यू परसुइंग द जर्नलिज्म प्रोग्राम, it has become very important to सर्च द अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि अगर आपके पास में मौकों की कमी नहीं होगी तो आप सीखना कम नहीं कर सकते। किसी भी पैरामीटर पे आपको सीखने के लिए कम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे आपको सीखने की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। पंजाब का एक ऐसा सिटी जालंधर, जो कि मीडिया हब है, दूरदर्शन केंद्र यहाँ पे है। तो टेलीकास्टिंग यहाँ से हो रही है। ऑलमोस्ट जितने रेडियो स्टेशंस हैं वो यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे पंजाब केसरी उनमें से एक है, अमर उजाला उनमें से एक है। उनके उनके जो हेड ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे हैं। और बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं जो यहाँ से ऑपरेट। तो ना हमें कहीं पे भी जो है कमी है सीखने में, ना हमें कहीं पे भी कमी है मौकों में, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो इस तरह की यूनिवर्सिटी है कि आपको सिखाने के लिए हमेशा अग्रसर है। राइट। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में ही कुछ बताना चाहूँगा, कि आपको क्यों यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आकर के एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ना सिर्फ आपको पढ़ाती है, बल्कि आपको आने वाले उन उन इवेंट्स के लिए भी तैयार करती है जिनमें जिनके लिए आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप अगर एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो
सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्रेडिटेशन की, अप्रूवल्स की। हम लोग इस वक्त नैक ए प्लस प्लस यूनिवर्सिटी हैं। नैक ए प्लस प्लस यूनिवर्सिटी एक कोई छोटा मोटा कोई टैग नहीं है। वी आर द फर्स्ट इन साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन टू स्कोर दिस मच अमंग ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, 3.68, 4 पॉइंट स्केल के ऊपर। कुछ और अप्रूवल्स एक्रेडिटेशंस भी हैं हमारे पास में। देखिए, जर्नलिज्म जो है वो उसके साथ में हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाइयाँ, कुछ ना कुछ नॉलेज एडिशन ऐसी रहती है जो आपको हमेशा हेल्पफुल होती है आपके आने वाले करियर में, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है। हमारे पास में ऐसी भी फैसिलिटीज़ हैं कि आप जर्नलिज्म पढ़ते हुए कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो है वो लॉ के भी ले सकते हो। कुछ जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं वो मे बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी ले सकते हो, मे बी पॉलिटिक्स में से भी कुछ ले सकते हो, मे बी सोशल वर्क में से कुछ ले सकते हो। तो इस तरह के जो करिकुलम हैं वो डायनामिक करिकुलम कुछ ही यूनिवर्सिटीज दे सकती हैं आपको, और वो उनमें से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक है। तो हमारा जो करिकुलम है वो आपको एक इंक्लूसिव ग्रोथ का पैकेज प्रोवाइड करेगा। हम लोग एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के मेंबर हैं, जहाँ पे अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को किसी जगह पे प्रेजेंट करना चाहते हो, तो वो एक प्लेटफॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप अपने आप को लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, और वहाँ पे आप जीत के अपने आप को एक अच्छा पत्रकार साबित कर सकते हो लिटरेरी इवेंट में, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो एलोक्यूशन हो, चाहे वो एक्सेम्पलरी हो। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, सो just see the level of exposure and opportunities LPU is providing. रैंकिंग्स और अवार्ड्स, सर्टेनली जब इतना कुछ कर रहे हैं तो रैंकिंग्स और अवार्ड्स भी होंगे हमारे पास में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हम लोग 23rd रैंक पे हैं, जो विद रियल इम्पैक्ट, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विद रियल इम्पैक्ट रैंकिंग है उसमें हम लोग 2nd रैंक पे हैं, ठीक है। तो जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसमें हम लोग 3rd रैंक पे हैं। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, जस्ट फॉर द नॉलेज एडिशन। करिकुलम, को करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर। अब ये वो चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को उसके स्टूडेंट लाइफ में समझ जानी चाहिए कि मुझे ये तीनों करनी है अगर मुझे एक सक्सेसफुल सिटीजन बनना है, या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है इन अ करियर, एज इन अ करियर, राइट। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज भी उतना ही रोल प्ले करती हैं जितना कि एक करिकुलम पढ़ना आपकी जो पर्सनालिटी है उसको निखारता है। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इवेंट मैनेजमेंट, राइट। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का अपना एक नैरो कास्टिंग न्यूज़ चैनल है। हम लोग अपना एक न्यूज़पेपर, मंथली न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो, आप उसमें आप काम कर सकते हो। सर ने, जितेंद्र सर ने और यूसुफ जी ने ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात करी थी। मैं आपको नैरो कास्टिंग के बारे में बता देता हूँ। नैरो कास्टिंग एक ऐसी टर्म है जो किसी एक दायरे के अंदर, जैसे जो जो फर्क इंटरनेट और इंट्रानेट में होता है, वही फर्क ब्रॉडकास्टिंग और नैरो कास्टिंग में होता है। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स यू आर कास्टिंग मूविंग पिक्चर्स एट अ ब्रॉडर लेवल। नैरो कास्टिंग होता है कि आप एक एक दायरे के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर उसी की रेलेवेंट जो भी वीडियोस हैं, जो भी फोटोज हैं, या जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, अगर उनको आप पब्लिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नैरो कास्टिंग। तो हमारा एक अपना नैरोकास्टिंग न्यूज चैनल है वाई टीवी, जो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ही चलाते हैं, और एक अपना न्यूज़पेपर है लवली वर्ल्ड जो मंथली पब्लिश होता है, उसमें आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे 13 स्टूडेंट्स को मौका मिला था पार्टिसिपेट करने का, जिनमें से 12 स्टूडेंट्स ने देश और यूनिवर्सिटी और अपने लिए अपनी झोली में मेडल्स लाए हैं। चाहे बात कर लो नीरज पुनिया की, चाहे बात कर लो बजरंग पुनिया की, चाहे बात करें उस टाइम पे हॉकी के
जो हमारे इंडियन टीम के कप्तान रहे हैं सरदार मनप्रीत सिंह, ये सभी हमारे ही स्टूडेंट्स थे और इन सब ने मेडल्स जीते हैं। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि अगर 13 बच्चे जो टोक्यो ओलंपिक्स में गए हैं, मतलब एक कंटिजेंट जो होता है वो कितने लोगों का होता है, उनमें 13 लोग एलपीयू से गए और उनमें से भी 12 लोग मेडल जीत के लाए। तो आप देखिए कि कितनी आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं स्पोर्ट्स में अपने आप को ग्रो करने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज में अपने आप को ग्रो करने के लिए, फाइन आर्ट्स में, थिएटर में, लिटरेरी में। तो ये देखिए अभी अभी हाल ही में हम लोग यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जीत के आए हैं, माँ का स्पोर्ट्स ट्रॉफी, एक और हिस्टोरिक मोमेंट है यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ पे नीरज चोपड़ा जीत के आए थे। 19th एशियन गेम्स, इसमें हम लोगों ने अपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेडल्स लाए हैं देश के लिए। बहुत बड़ी बात है ये एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप अगर अपने आप को देख रहे हो कि यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके पास में बहुत सारे जो मौके हैं वो आने वाले हैं। अब ये एक ऐसा मौका था, यूसुफ साहब, आपको भी मैं ये बताना चाहता हूँ। इंडियन साइंस कांग्रेस 1913 से लगातार हर साल होती आ रही है और इसकी एक प्राथमिकता है कि अ, एक प्रोटोकॉल है इसका कि जो देश के प्रधानमंत्री रहते हैं उस टाइम पे वो इस इवेंट को ओपन करते हैं। तो इंडियन साइंस कांग्रेस पंजाब में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहली बार हुई। पंजाब क्या, नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जिसने 2019 में इंडियन साइंस कांग्रेस को होस्ट किया। और उस समय रहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इवेंट को ओपन किया था। तो आप देखिए कि इस तरह के एक्सपोजर मिलेंगे आपको, इस तरह के इवेंट्स होंगे जहां पे आपको पत्रकारिता करने का मौका मिलेगा, इसको इवेंट, इस तरह के इवेंट्स को कवर करने का मौका मिलेगा। ये आने वाले टाइम में आपको आपके रिज्यूमे को और ज्यादा हैवी और ज्यादा वजनदार बनाएगा। इस शख्सियत को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये हैं दलाई लामा जी। ये एक कॉन्वोकेशन हुई थी यूनिवर्सिटी में, उसमें ये यूनिवर्सिटी में डिग्री वितरण के लिए आए थे और बच्चों को इन्होंने अपनी जिंदगी के जो संघर्ष हैं या जो इनकी जो टीचिंग्स हैं वो उसके बारे में इन्होंने मालूमात दी सबको। इस तस्वीर में आप हमारे ऑनरेबल चांसलर जो इस वक्त राज्यसभा के सांसद भी हैं, और आप दो राष्ट्रपतियों को देख सकते हैं जो दो अलग अलग देशों के हैं। श्री प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे हिंदुस्तान के तो राष्ट्रपति थे, और श्री हामिद करजई जी ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो ये तस्वीर एक कॉन्वोकेशन के मौके की है जहाँ पे बच्चों को यूनिवर्सिटी में डिग्रीज जो है बांटी गई थी। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं लेट श्री अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी एलपीयू में एलपीयू स्टार्टअप स्कूल के उद्घाटन के मौके पर यहाँ पे मौजूद थे। तो अ, हम यूनिवर्सिटी में बच्चों को इस चीज़ के लिए भी प्रोत्साहन देते हैं कि अगर आपके पास में कुछ यूनिक, कुछ अलग किस्म के कुछ आइडियाज हैं आपके पास जो कि नए बिजनेस मॉडल को डेवलप कर सकते हैं और मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन के उभर सकते हो, तो उसके लिए हम लोग एलपीयू स्टार्टअप स्कूल हमने शुरू किया हुआ है, जिसके लिए हम लोग सीड मनी भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग में। वेंकैया नायडू जी ये उपराष्ट्रपति थे, ये भी एक कॉन्वोकेशन के मौके पे यहाँ थे। गौहर गोपाल दास, इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं वो उनको अपने जो इनके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको ये शेयर किया। अपने जो भी इनकी टीचिंग्स रही हैं, जो भी हमारे बच्चों के, हमारे फैकल्टीज के जो सवाल थे बखूबी उनको जवाब दिया, और बहुत कुछ बच्चों ने इनसे सीखा। कुछ समय पहले ये भी यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। इन लोगों को भी किसी पहचान की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान ये भी यूनिवर्सिटी में आए थे, सिर्फ जो है वो लोगों का मनोरंजन करने ही नहीं, ये लोग अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस को शेयर करने आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, कुछ और कलाकार, डांस डायरेक्टर प्रभु देवा, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, हम लोग गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। एक ही जगह पे बहुत सारे लोग, सबसे ज्यादा इन द नंबर, इन द मैक्सिमम नंबर हम लोगों ने भंगड़ा प्ले किया था, तो हम लोग अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा चुके हैं।
दिस इज द व्यू ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक ओपन एयर थिएटर है, ये इंडोर ऑडिटोरियम है जहाँ पे 2500 लोग एक ही छत पे एक समय इकट्ठे हो सकते हैं। ये दृश्य जो है एक हमारे मैथ लैब का है। ये लाइब्रेरी का, हर स्कूल में एक अपनी लाइब्रेरी है, एक हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी भी है जिसमें 9 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, और आप बिना किसी कीमत के, विदाउट एनी कॉस्ट, आप उन किताबों को जो है वो आप इशू करवा सकते हो, पढ़ने के बाद वापस कर सकते हो। ये दिस इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये हमारा यूनी मॉल हम इसको बोलते हैं, एक शॉपिंग मॉल है जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही है। मैं आपको इसके अंदर लिए चलता हूँ। ये अंदर का दृश्य है जहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी है, वेयर यू कैन मीट ऑल योर नीड्स। कैंपस के अंदर ही आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। बहुत ही हाईटेक जिम भी अवेलेबल है, बॉलिंग एले भी देयर है, देयर इज अ बॉलिंग एले। एक 50 बेड्स का एक हॉस्पिटल भी अवेलेबल है। भगवान ना करे कभी देर सवेर भी जरूरत पड़ जाए तो 24 घंटे के लिए 24/7 जो है वो एम्बुलेंसेस भी अवेलेबल है। ये हमारा ओपन एयर यूनिपोलिस हम इसको बोलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो हम कंडक्ट करते हैं। ये एक पैनोरामिक व्यू है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमें ये अवार्ड मिल चुका है। हम लोग 7वें नंबर पे रहे हैं पूरे इंडिया में क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट कैंपस की दौड़ में। वी आर द लश क्लीन कैंपस। आप देख सकते हो, ये रात का दृश्य है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेरेंट्स के लिए जो एक सबसे बड़ी चिंता होती है, हम लोग रैगिंग फ्री कैंपस हैं। 35,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, शायद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी इतने सीसीटीवी कैमराज नहीं होंगे। लगभग लगभग 300 से 350 सिक्योरिटी गार्ड्स यूनिवर्सिटी में हर हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, जो कि हमारी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। इंडोर कैंपस का दृश्य है जिसमें आप किसी भी खेल का, किसी भी कोर्ट का नाम ले लीजिए और हमारे पास में वो कोर्ट अवेलेबल है। हम बैडमिंटन का कोर्ट देख सकते हैं, शूटिंग रेंज हमारे पास है, बास्केटबॉल कोर्ट, स्क्वॉश। बहुत कम यूनिवर्सिटीज, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ जिनके पास में स्क्वॉश के कोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। ये एक स्विमिंग पूल है जो कि एशियन गेम्स लेवल का है, और ये एक एरियल व्यू है इनसाइड जो हमारा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके। अभी मैं आपको लाइव लिए चलता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमें किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, और आप यूआरएल जो है वो आप एंटर कर सकते हैं, lpu.in। ये हमारी वेबसाइट है। जब आप इस पे जाएंगे तो आप इस तरह से एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे, और एडमिशन्स में आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेज, सभी कोर्सेज की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। आफ्टर 12th रेगुलर प्रोग्राम्स में जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से जो डिसिप्लिन है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने जर्नलिज्म यहाँ से सिलेक्ट किया, और बीए जर्नलिज्म कोर्स के लिए मैंने जो इंफॉर्मेशन पेज है उसे मैंने ओपन किया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीए जर्नलिज्म पढ़ने के लिए एलपीयू में, वो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट +2 में, और इंग्लिश जो है वो एज ए सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हम देते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। तो उन स्कॉलरशिप्स में हम लोग वाकई जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों की एकेडमिक एक्सीलेंस को। और उसमें चाहे वो उनकी पिछली क्लास के नंबर हों, चाहे हमारे जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है उसमें उनके मार्क्स हों, या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड डिफेंस से हो, और भी बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे पास में अवेलेबल है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपकी जो फी है वो कम हो करके, मतलब आप इस वक्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20% तक आप स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हो। 5 जुलाई के बाद से स्कॉलरशिप्स जो हैं वो कम होने वाली हैं अभी। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीए जर्नलिज्म में, इस वक्त 25% स्कॉलरशिप है, लेकिन 5 जुलाई से जो ये स्कॉलरशिप है वो 10, 15 और 20 तीन कैटेगरीज में हम स्कॉलरशिप देते हैं। इस वक्त जो स्कॉलरशिप की कैटेगरी चल रही है वो 15, 20, 25 है, और ये 5 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद में 10, 15 और 20 हो जाएगी। तो स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम होने वाली है। सो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं एक अच्छी क्वालिटी जर्नलिज्म एजुकेशन के लिए,
और अच्छे मौकों की तलाश में है तो प्लीज डू कम टू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे राइट साइड पे अप्लाई नाउ का एक बटन है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स भरनी होंगी और आप कॉन्टैक्ट हमें किस तरह से कर सकते हो। आप इस स्क्रीन का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नंबर नोट कर सकते हो। हमें कॉल करने के लिए डायल कीजिए 01824 51700, 01824 404404। हमारे एडमिशन काउंसलर्स के साथ आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट भी कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर चैट करने के लिए आपको नंबर पिंग करना होगा 9852569000। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो admissions@lpu.co.in पे, और किसी भी आम जानकारी के लिए आप info@lpu.co.in पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। LPU इन योर टाउन एक हमारा स्पेशल फीचर है जो आप अपने ही स्टेट में, अपनी ही सिटी में हमारे एडमिशन काउंसलर्स को जाकर मिल सकते हो। अगर कोई चाहता है कि मैं एलपीयू के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहता हूँ तो आप एलपीयू इन योर टाउन पर क्लिक कीजिए और अपने स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मैं अगर दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। न्यू दिल्ली मैंने सिलेक्ट किया तो न्यू दिल्ली के ऑफिस का एड्रेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ पे कौन अवेलेबल है, उनकी डिटेल, फ़ोन नंबर, सब कुछ वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से इतना ही है। धर्मेंद्र, मैं स्क्रीन जो है शेयरिंग को बंद कर रहा हूँ। आप प्लीज अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए। Thank you so much, Mr. Ashish Kumar Sharma, and once again, thanks to our experts. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. To all our parents and students, I hope you found this session as informative and engaging as I did. Remember, the key to success lies in staying informed, being adaptable, and continuously learning. Before we close, I would like to remind everyone that our Division of Admission Cell is always here to support you in your journey towards a successful career. Feel free to reach out to us with any questions or for further guidance. Thank you all for joining us today. Have a wonderful day. Thank you so much.